خدا کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، اس خدا کے کلام میں جو پڑھا گیا، یہ تیموتھیوس، بظاہر تیموتھیوس کو یہ خط لکھا گیا، تحریر کیا گیا پولوس کی طرف سے، اور اس خط کو پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ جو حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے نصیحت ہے۔ کیا نصیحت ہے؟ اور زور دے کر ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ اپنی مناجاتیں، دعائیں، التجائیں، شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ سب، یعنی ہماری جو دعائیں ہیں، ہماری جو شکر گزاریاں ہیں، دیکھیں یہ ہمیں ایک نصیحت ہے، اس پر زور دیا گیا ہے، اور جب لکھا گیا کہ سب آدمیوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے سب قومیں، سب مذاہب، اور ملک میں ایک ایک بسنے والا قبیلہ اور کسی بھی رنگ و نسل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور ان سب کے لیے کیا کیا جائے؟ مناجاتیں کی جائیں، دعائیں کی جائیں، خدا کے حضور التجائیں کی جائیں، ان سب کے لیے۔ کیوں کی جائیں؟ کس وجہ سے کی جائیں؟ میرے عزیزو، سب سے پہلے اس کا تعلق ہماری مشکلوں کے ساتھ ہے، ہماری آزمائشوں کے ساتھ ہے۔ آج جو ہم جن مشکلات کا شکار ہیں، ان میں بیماریاں ہو سکتی ہیں، ان میں بے روزگاری ہو سکتی ہے، ان میں غربت ہو سکتی ہے، ان میں ابلیس کی قوتوں کا جو ہے بندھن ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری مشکلوں کا میرے عزیزو حل یہ ہے کہ ہم دعائیں کریں۔ اور میرے عزیزو، بد امنی ہو سکتی ہے، اور رسول کہتا ہے، اور نیچے جا کر کہتا ہے، تاکہ ہم امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ کیوں دعائیں کریں؟ تاکہ اس کے لوگ، یہ پہلی بات، اس کے لوگ جو جہاں بھی رہ رہے ہیں، وہ امن سے، سکون سے، سلامتی سے رہ سکیں۔ اور یسوع مسیح نے اس کے لیے ہمیں اس کی جو نصیحت، پاورفل نصیحت، اس نے کہا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یعنی دعا کے وسیلے سے ہم آزمائشوں سے محفوظ ہوتے ہیں، امن و امان کی زندگی بسر کرتے ہیں، سلامتی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اس لیے ہمیں یہ نصیحت کی جا رہی ہے، اور یہ اس پر زور دیا جا رہا ہے کہ ہم مناجاتیں، اپنی دعائیں جو ہیں وہ سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ پھر
इसका ताल्लुक हमारी रूहानी तरक्की के साथ भी है। अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर बढ़ें, रूहानी तौर पर तरक्की करें, और हमारे बच्चे रूहानी तौर पर बढ़ें और तरक्की करें, हमारे मुआशरे में जो है वो तरक्की हो, हमारी चर्च में तरक्की हो, और हमारे मुल्कों की समाज में जो है तरक्की हो, तो इसके लिए भी यही नसीहत यहां जो जिक्र किया जा रहा है वो उसका लिंक भी हमारी दुआओं के साथ है। खुदावंद ने, हम पुराना आदनामा पढ़ते हैं, हमारी दुआओं के वजह से मुल्क बचते हैं, मुल्क बहाल होते हैं, अमनो अमान होता है, सलामती आती है, बरकत आती है, बहाली आती है। तवारीख की किताब का मशहूर हवाला मशहूर है, तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर मेरे दीदार के क्या हो, तालब हो, तो मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा, बरकत दूंगा, तरक्की दूंगा, खुशहाली बख्शूंगा। और जब मुल्क में तरक्की होगी, मुल्क में खुशहाली होगी, तो उसके साथ हम भी खुशहाल होंगे, हम भी तरक्की करेंगे, हमारी औलाद, हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। और इसी तरह चर्च में रूहानी तरक्की के लिए मेरे अजीजों हमें दुआ के लिए ये कहा गया है। और जहां जहां लोग दुआएं करते हैं और वहां मेरे अजीजों कलीसियाएं तरक्की करती हैं, और उन पर जहां जब हम दुआएं करते हैं कोई चीज गालिब नहीं आ सकती। इब्तदाई कलीसिया हम देखते हैं वो दुआ में जोर था उनका, दुआ में क्या था, जोर। लिखा है वो रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने, तालीम पाने में क्या रहते थे, मशगूल। और वो कलाम में भी तरक्की कर रहे थे। हर अगरचे प्रेशर थे उन पर, दबाव थे उन पर, और उनको रोका जाता था, उन पर दबाव डाला जाता था, उनको धमकाया जाता था, लेकिन वो दुआ से पीछे नहीं हटे, क्योंकि ये दुआ थी जो इन दबावों में, इन मुश्किलों में, इन धमकियों में उनको तरक्की दे रही थी, खुशहाल कर रही थी। और जरा मैं मतलब कि एक हवाला नहीं, कई मिसालें हैं। वो इधर उनको कैद खानों में बंद करते थे, उन्होंने पता ही नहीं, और वेखन आउंदे सन भी बंदे किदे गए, ते लभदे ओ कित्थों सन, जाके हैकल च दुआ कर रहे होंदे सन, कलाम सुना रहे होंदे सन, ਉਹੀ ਕੰਮ कर रहे होंदे सन जिहदी वजह तो उन्होंने बंद कर दिता जाता सी। कई मिसालें हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं। वो कैद खानों में उनको डाल देते, जिंदानों में डाल देते, पैरे लगा देते, लेकिन वो अपनी रूटीन के मुताबिक खुदा का पाकरू उनके लिए दरवाजे खोल देता। कोई कैद खाना, कोई मेरे असीसों उन पर कोई चीज गालिब नहीं आ रही थी। क्यों? वो दुआ कर रहे थे। और इसलिए हमें कहा गया है कि मुनाजातें, दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। और यहां चौथी आयत पहला हिस्सा, इसमें मेरे अजीजों जब पढ़ते हैं लिखा है वो चाहता है। ये वो कौन है? खुदा। कौन चाहता है? ये चाहत, ये चाहता, इसमें डिजायर, ख्वाहिश का मेरे अजीजों पहलू है। खुदा की ख्वाहिश, खुदा की जो डिजायर है हमारे लिए, हम दुआएं करें, हम जो है इस तरह सब आदमियों के लिए दुआएं करें। और ये मेरे अजीजों जब हम दुआएं करेंगे तो आगे जो लिखा है, ताकि सब लोग निजात पाएं। यहां अंजील के लिए नहीं कहा जा रहा कि सब लोग अंजील सुनाएं, अंजील पर जोर नहीं, यहां पर, यहां दुआ पर जोर है। किस पर जोर है? अंजील बहुत जरूरी है, बशारत बहुत जरूरी है, लेकिन खुदा की ख्वाहिश, जब तक हम दुआएं, हम इल्तिजाएं नहीं करेंगे, अंजील के लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे।
लोगों के दिल नहीं बदलेंगे, लोगों की जिंदगियां नहीं बदलेंगी और लोग आजाद नहीं हो सकते। जब चर्च दुआएं करेगा, ये खुदा की डिजायर, ख्वाहिश है कि हम दुआएं करें, ये खुदा चाहता है ताकि सब लोग क्या कर जाए, निजात पा जाए। सब लोगों के लिए, गुलामों के लिए, बीमारों के लिए, गुनहगारों के लिए हम दुआएं करें ताकि वो निजात पाएं। लिखा है सब लोग निजात पाएं। सब खुदा की ख्वाहिश, खुदा की आरजू। तो अजीजों, कितना हमारे लिए किस कदर हमें दुआएं करने की जरूरत है। खुदा की ख्वाहिश है, डिजायर है और आरजू है, नसीहत है कि सब आदमियों के लिए दुआएं की जाएं, इल्तिजाएं की जाएं, शुक्रगुजारियां की जाएं, मर्तबा व बड़े मर्तबा वालों के लिए, बादशाहों के लिए, हर एक के लिए और सब कौमों के लिए हमारे अंदर दर्द हो, ख्वाहिश हो कि ये बदल जाए और हमें मौका मिले बड़े बड़े मर्तबा वालों के सामने अंजील सुनाने का, हमें मौका मिले कौमों में अंजील सुनाने का। खुदा दरवाजे खोले, खुदा मौके फराम करेगा, खुदा हमारे लोगों को उठाएगा ताकि ये खुदावंद जो है दुनिया को बचा सके, दुनिया में जो है अंजील फैल सके और कलीसियाएं चेंज हो सके, बरकत पा सके, हमारे नौजवान बरकत पा सके। आमीन।